Good afternoon, students. We have been discussing the monetary policy measures to control excess demand. We saw that there are two types of measures, quantitative measures and qualitative measures. We discussed quantitative measures, which consisted of bank rate, repo rate and reverse repo rate. Up to this we discussed. There are few more quantitative measures, instruments which are used by RBI to control the excess demand in the economy or to control the inflation. Now, today we will discuss open market operations. What is open market operations? It refers to purchase and sale of government securities in the open market, that is public and commercial banks, by the central bank. So open market operations is a type of market operations. So in market what happens? In market, operation of sale and purchase is done. Either it is goods or services which are sold and purchased at a place, and that place is market. So in case of open market operations, government sells and purchases the securities. So in markets, here is for commercial banks as well as public also. So from public or from commercial banks, securities are sold and purchased. So how it is done? It refers to purchase and sale of. How it is done? To control excess demand, government securities are sold by the central bank in the open market. So these securities are sold by the central bank in the open market. Now, government directly does not sell, but through the RBI, through the central bank, securities are sold. RBI के द्वारा इसको बेचा जाता है. Government withdraws additional purchasing power from the system. और जब गवर्नमेंट इसको बेचता है, RBI जब इस सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है, तो उसका मेन मोटिव ये रहता है कि जो मनी है, जो सरप्लस मनी है आदमी के पास में इकोनॉमी में, या फिर कॉमर्शियल बैंक्स के पास में जो सरप्लस अमाउंट है उसको विथड्रॉज किया जाए, उसको लिया जाए. और उसको लेने के लिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है कि सिक्योरिटीज़ को हम बेच रहे हैं, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आप जो है लीजिए सिक्योरिटीज़ और बदले में हमको पैसा दीजिए, मनी दीजिए, आपको इतना इंटरेस्ट देंगे बाद में. सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो आपको एक्सेस डिमांड के केस में क्या करता है, चूँकि मनी लेना रहता है, चूँकि एक्सेस डिमांड इसीलिए होता है, इन्फ्लेशन इसीलिए होता है क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा आपको मनी है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए चूँकि मनी को गवर्नमेंट को लेना है, इसलिए सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है. लेकिन डेफिशिएंट डिमांड के केस में, डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा. वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ है उसको गवर्नमेंट फिर ले लेगा, रिटर्न बैक. जो बेचा था जो सिक्योरिटीज़ उसको गवर्नमेंट ले लेगा और बदले में फिर आपको पैसा दे देगा. Now next one is varying legal reserve requirements. ये legal reserve requirements जो है we discussed in banking chapter. So it consists of two instruments, that is CRR and SLR. What is CRR? It is the minimum percentage of deposits of commercial banks which is kept with RBI in cash. ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो कि कमर्शियल बैंक्स का आरबीआई के पास में
डिपॉजिट रहना जरूरी है। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड CRR इज इंक्रीज्ड, और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए CRR को बढ़ा दिया जाता है, कैश रिजर्व को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि चूँकि मनी सप्लाई को कम करना है। देयरफॉर इफ इट इंक्रीजेस इट मीन्स कमर्शियल बैंक्स विल डिपॉजिट मोर अमाउंट, मोर कैश रिजर्व्स टू RBI, और चूँकि कैश का कमी आ जाएगा बैंक्स के पास में, कमर्शियल बैंक्स के पास में, देन इट विल लीड्स टू रिडक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। वी डिस्कस हाउ क्रेडिट इज क्रिएटेड फ्रॉम द डिपॉजिट्स, सो हाउ इनिशियल डिपॉजिट इज multiplied many folds to get the final credit creation, final deposits. So with the help of deposit multiplier we already discussed that. तो यदि कम कर दिया जाएगा कैश रिजर्व को तो उससे क्या होगा, आपका क्रेडिट बढ़ जाएगा, और यदि कैश रिजर्व को बढ़ा दिया जाएगा RBI के पास में कमर्शियल बैंक्स का, तो कमर्शियल बैंक्स के पास में कैश रिजर्व कम रहेगा और इसलिए वो जो है क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा या फिर कम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिया है कि टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड CRR इज इंक्रीज्ड। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप के केस में क्या होगा, डिफ्लेशन के केस में इन दैट केस CRR विल बी डिक्रीज्ड। इसका जस्ट अपोजिट आपको लिखना है उस केस में। नेक्स्ट वन इज SLR। इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स which every bank is required to maintain with itself in the form of liquid assets। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी डिपॉजिट्स है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो, तो उसका जो है आपको कुछ परसेंटेज जो है आपको कैश के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आपको रखना है, क्योंकि वो कभी भी जो है आपको कस्टमर्स जो है कभी भी आपसे वो डिमांड कर सकता है। तो इसीलिए आप तो लोन को क्रिएट कर देते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स को आप क्रिएट कर देते हैं, कैश नहीं भी है बैंक के पास में फिर भी लोन क्रिएट किया जाता है, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन यदि आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स है किसी का, तो कभी भी ले सकता है, कभी भी आपको बैंक को बोल सकता है कि हमको दीजिए पैसा। तो इसीलिए आपको उतना मेंटेन करके रखना है। तो जो भी आपके पास में डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स, उसका जो है कुछ परसेंटेज आपको लिक्विड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में आपको रखना है। सो टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड इट इज इंक्रीज्ड। तो लिक्विड एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए बोला जाता है, किस केस में, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। क्यों? क्योंकि यदि बैंक अपने पास में रखेगा कैश को, मैंडेटरी हो गया है रखना, क्योंकि RBI जो है डायरेक्शन दिया है, तो वो जो है क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा, लोन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास में उतना रिजर्व जो है रहना चाहिए कैश का। उतना रिजर्व यदि उसके पास नहीं रहेगा बैंक के पास में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपको मिनिमम जो लिक्विड एसेट्स है, मिनिमम जो कैश है जो बैंक अपने पास में रखेगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा यदि अमाउंट को, तो फिर बैंक जो है लोन नहीं दे पाएगा, क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिससे सप्लाई ऑफ मनी जो है इकोनॉमी में कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। तो याद रखना कि CRR जो है वो रिजर्व बैंक RBI के पास में रहता है, और जो SLR है वो आपको कमर्शियल बैंक के पास में रहता है। कमर्शियल बैंक यदि खुद अपने पास में जो रिजर्व रख रहा है SLR हुआ, और जो RBI के पास में रख रहा है वो CRR हुआ। Next one is qualitative measures. So we discussed all the quantitative measures. Now we'll discuss qualitative measures. First one is imposing
मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव मेजर्स है। इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, जी हाँ, मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ द लोन। इसको सिंपल भाषा में आपको हम बताना चाहते हैं कि मार्जिन किसको बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं जो मार्केट वैल्यू है, जो करेंट वैल्यू है सिक्योरिटी का, जो कस्टमर जो है बैंक को देता है, जिसको कोलेट्रल भी हम लोग बोलते हैं। जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास में, तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगता है कि आप हमको कुछ सिक्योरिटी दीजिए ताकि आपको हम लोन दे सके और हमको विश्वास हो सके कि आपको जो है हम लोन देने के बाद फंसेंगे नहीं, यानी कि आप फिर हमको रिटर्न कर दीजिएगा। रिटर्न नहीं कीजिएगा तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर दिया जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ द कोलेट्रल दैट वी डिपॉजिट टू द बैंक्स। तो बैंक्स के पास में आप जो कोलेट्रल, आप जो सिक्योरिटी जमा करते हैं, उसका वैल्यू अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ द लोन, और आपको जो लोन दिया जा रहा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी दिया जा रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिन। नहीं समझ में आया? इसको और सिंपल में समझ लो कि यदि तुम लोन लेने के लिए बैंक के पास पहुंचा और लोन आपको लेना है 5 लाख का, और आप जो प्रॉपर्टी का वैल्यू वहाँ पे दिए हैं, जो आप सिक्योरिटी वहाँ पे दिए हैं, आपके पास ज़मीन है या जो भी प्रॉपर्टी है वो 8 लाख का है। तो 8 लाख का सिक्योरिटी आप बैंक के पास जमा किए हैं, यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, घर है, जो कुछ भी है, उसका जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है अभी का, वो 8 लाख है, और आपको उसके बदले में लोन दे रहा है 5 लाख का, यानी कि 5 लाख लोन लेने के लिए आपको 8 लाख का प्रॉपर्टी को जमा करना पड़ रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 3 लाख हुआ, 3 लाख। आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 3 लाख ज़्यादा है जितना आप लोन ले रहे हैं, तो ये 3 लाख को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो क्या करेगा? टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड, उसको बढ़ा दिया जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट को। यानी कि यदि 3 लाख से कर दिया गया 5 लाख, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 5 लाख होना चाहिए। यदि आपको 5 लाख लेना है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 लाख, यानी कि 10 लाख का प्रॉपर्टी आपको दिखाना होगा। यदि आपके पास 10 लाख का प्रॉपर्टी है तभी जाके आपको 5 लाख मिलेगा। यदि आपके पास में 8 लाख का ही प्रॉपर्टी है तो आपको कितना लोन मिलेगा? 3 लाख मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 लाख का जो है मार्जिन बैंक फिक्स कर दिया है। पहले 3 लाख का मार्जिन था, अब जो है 5 लाख कर दिया है। तो 5 लाख का मार्जिन डिफरेंस रहना चाहिए। आप जितना लोन ले रहे हैं, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका बीच में 5 लाख होना चाहिए। यदि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 8 लाख है तो उससे 5 लाख कम कर दीजिए, यानी कि 3 लाख आपको लोन मिलेगा। तो इसीलिए टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देने से क्या होता है? आदमी कम लोन लेता है। देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट, लेस मनी विल फ्लो इन द सिस्टम एंड एक्सेस डिमांड करेक्टेड। और जैसे ही आपको एक्सेस डिमांड आपको करेक्ट होगा तो आपको फिर से जो है आपको राइट पाथ पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड विल बिकम इक्वल टू एक्सेस, एग्रीगेट डिमांड विल बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। So I hope that you have understood the meaning of imposing margin requirement. Next one is moral suasion and direct action. Moral suasion and direct action का मतलब क्या हुआ? It is a combination of persuasion and pressure that the central bank applies to other banks in order to get them fall in line with its policy. Direct action may be taken against the banks which do not comply with RBI's policies. Moral suasion का मतलब हुआ अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर यदि रिक्वेस्ट नहीं मानेगा तो डायरेक्ट एक्शन लेगा। यानी कि
प्रेशर, परसुएशन एंड प्रेशर दोनों आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई यदि कोई पॉलिसी अपनाता है तो वो बैंक्स को मानना है। बैंक को अपने पॉलिसी के अनुसार कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देता है आरबीआई, बोलता है कि आपको लोन अभी नहीं देना है, तो वो फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अर्ज करेगा कि अभी जो है चूँकि इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, तो आप जो है क्रेडिट कम क्रिएट करेंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये इसको लोग बोलते हैं परसुएशन, मॉरल सुएजन। और यदि नहीं माना जाए तो डायरेक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, फाइन भी जो है चार्ज किया जा सकता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर में, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स which can be taken by RBI. Last one is selective credit control. Here areas are selected as priority sectors for either credit extension or contraction. In case of excess demand, there will be contraction of credit in selective areas. Now selective credit creation control जो है आपका, या फिर selective credit control जो है, इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्टिव एरियाज को आपको या फिर प्रायोरिटी बेसिस पे आरबीआई जो है पॉलिसी को लॉन्च करता है कि किस एरिया में जो है क्रेडिट लोन को देना है और किस एरिया में लोन को नहीं देना है। फॉर एग्जांपल यदि आपको इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो खाने पीने का जो सामान है उसका महंगाई आपका हो गया है, तो यहाँ पे आरबीआई बोल सकता है कि जो भी लोन फूड डिमांड रिलेटेड होगा उसको जो है नहीं देना है। यानी कि होर्डिंग से बचाने के लिए यदि कोई लोन लेने के लिए बैंक के पास में गया और उसका पर्पस है होर्डिंग करना, उसका पर्पस है अनाज को खरीदना, फूड्स को खरीदना मार्केट से, तो फूड्स को खरीद करके वो घर में रख सकता है, होर्डिंग कर सकता है। उससे क्या होगा, महंगाई और बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो उस पर जो है कंट्रोल किया जाता है कि नहीं, आपको हम जो है लोन नहीं दे सकते हैं। तो लोन का मेन पर्पस क्या है, क्रेडिट का जो है मेन पर्पस क्या है, वो बैंक जानना चाहता है। और यदि आपका पर्पस जो है ऐसा है जो बैंक नहीं चाहता है तो फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि यहाँ क्रेडिट तो दिया जाता है लेकिन आपको सेलेक्टेड एरियाज में, जिसमें आरबीआई चाहता है उसमें, ना कि दूसरा में। The basic logic behind such controls is that by restricting the availability of bank credit for purchasing and hoarding of some sensitive commodities, that is commodities subject to speculative pressures, या भी जिसका speculative रहता है कि प्राइस बढ़ सकता है, महंगा हो सकता है, it will be possible to restrict the capacity of traders to hold the stock of such goods rather automatically। जैसा कि हम लोग आपको एक्सप्लेन किए कि आपको होर्डिंग से बचाने के लिए आपको क्रेडिट जो है आपको उसका कंट्रैक्शन किया जाए, क्रेडिट नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बोथ। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी इन द ग्रुप। थैंक यू।